Hello students, welcome to the computer science class. Students, in the last class I had started the chapter data structure. In that we saw what is a data structure, what are the different categories or types of data structure. Then we have seen a brief introduction about various data structures. Then I started the topic stack. We have seen what is a stack. A stack is a linear data structure which is implemented in LIFO manner. Stack में सबसे important होता है, you have to remember the implementation method, that is LIFO manner, last in first out. जो element सबसे last insert होता है वही element सबसे पहले out होता है. Clear? So now I am going to continue with this chapter. First we will see about what are the operations on data structure. Data structure में क्या क्या operations perform कर सकते हैं, that we will see now. Students, see here, these are the operations on data structure. There are 6 operations that can be performed on various data structure: insertion, deletion, searching, traversal, sorting and merging. Let's see one by one. First one is insertion. नाम से आपको समझ में आ रहा है, if you want to insert a new data element in an existing data structure, जब हम एक new element को data element को insert करते हैं data structure में, then that operation is called as insertion. Okay. Second is deletion. Deletion means if you are removing any data element, that means if you are deleting any data element from a data structure, then that is called as deletion. Clear? Third one, searching. सर्चिंग नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये ऑपरेशन में क्या होगा. सर्चिंग में इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर, इफ़ यू आर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर आप एक डेटा स्ट्रक्चर में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज सर्चिंग. तो सर्चिंग में जिस एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हैं, सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, फर्स्ट इट विल बी चेक वेदर दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर और नॉट. यानी सर्चिंग से पहले ये चेक होता है कि वो डेटा एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, देन सर्च होता है. देन फोर्थ वन, ट्रैवर्सल. ट्रैवर्सल मीन्स प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर. जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करना वन बाय वन. That means processing all the elements of a data structure one by one, it is called as traversal. Clear? Fifth operation is sorting. Sorting हमने पहले भी देखा था. Sorting का मतलब क्या होता है? Arranging the records. तो यहाँ पर क्या होगा? Sorting means arranging the data elements in a specified order, in a specific order. ओके तो सॉर्टिंग में क्या करते हैं, जो भी डेटा एलिमेंट्स है डेटा स्ट्रक्चर का, उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, स्पेसिफाइड ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग. द लास्ट ऑपरेशन दैट इज मर्जिंग. मर्ज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मर्ज मीन्स कंबाइन करना. तो यहाँ पर मर्जिंग में क्या होगा, इफ़ यू आर कंबाइनिंग डेटा एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर, यानी दो डेटा स्ट्रक्चर होगा, वो सिमिलर होना चाहिए, उस डेटा स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करना, वो भी उसी टाइप का डेटा, उसी डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट का होगा, देन दैट इज कॉल्ड एज मर्जिंग. दैट मीन्स मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग 2 or more डेटा एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर that will be of same type. जो दो टाइप को हम कंबाइन करते हैं सिमिलर टाइप का, जो नया डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो भी उसी टाइप का होता है. सो मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग मोर देन वन एलिमेंट विथ सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर. So these are the operations that can be performed on a data structure. There are total 6 operations. Hope the operations is clear to you. Students, after operations on data structure, let's continue with stack. The next topic under stack is implementing stack in Python. Stack में, stack को हम Python programming में कैसे implement करते हैं? In order to implement stack in Python, we use list. Normally list को use किया जाता है in order to implement stack. So various stack operations can be performed यूजिंग लिस्ट. लिस्ट को यूज़ करके ही हम जितने भी स्टैक ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस हमने पिछले क्लास में देखा था, जैसे पीक है, पुश एंड पॉप, दिस आर द स्टैक ऑपरेशंस. पीक मीन्स इंस्पेक्टिंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट, जो टॉप में जो एलिमेंट होता है, वैल्यू होता है, जस्ट उसको इंस्पेक्ट करना,
इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज इंस्पेक्शन ऑल्सो, विदाउट रिमूविंग द टॉप एलिमेंट। यहाँ पर जस्ट इंस्पेक्ट किया जाता है बट वो एलिमेंट, टॉप वाला एलिमेंट रिमूव नहीं किया जाता है। पुश हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल भी देखा था, पुश मीन्स इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू अ स्टैक, पॉप मीन्स रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक। सो आपको पता है पुश और पॉप दोनों कहाँ पे होता है, टॉप में होता है, एट ओनली वन एंड, दैट इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक। सो इफ आई वांट टू परफॉर्म दिस स्टैक ऑपरेशंस, हमें पता है स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए पाइथन में हम क्या यूज करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं। सपोज द लिस्ट नेम इज स्टैक, हम मान के चलते हैं द नेम ऑफ द लिस्ट इज स्टैक। नाउ इफ आई वांट टू परफॉर्म पीक ऑपरेशन, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, द सिंटैक्स इज फर्स्ट यू हैव टू राइट द लिस्ट नेम दैट इज स्टैक, यहाँ पर लिस्ट नेम क्या है, स्टैक है, देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू राइट टॉप। इस तरीके से आपको लिखना होगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म पीक ऑपरेशन। पीक करना होगा तो क्या करना होगा, सबसे पहले स्टैक लिखना है, स्टैक मीन्स लिस्ट नेम, देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू राइट द टॉप। टॉप मीन्स द टॉप विल इंडिकेट एन इंटीजर, यहाँ पर टॉप में क्या इंडिकेट करेगा, एक इंटीजर होगा, द वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक माइनस 1। जो भी स्टैक का लेंथ होगा वो -1, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है तो लेंथ ऑफ द स्टैक जो भी होगा -1, तो वो जो नंबर होगा दैट विल बी इंडिकेटेड बाय टॉप। दैट मीन्स टॉप में एक इंटीजर वैल्यू होगा, स्टैक इज अ लिस्ट। सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, pick. Clear? Second one, if I want to perform push operation, अगर हमें push operation perform करना है, for that I have to write stack dot append. Append is the method. Then within parenthesis you have to give the item. This is the syntax for inserting an element into a stack. Push operation perform करने के लिए सबसे पहले लिस्ट का नेम, लिस्ट नेम यहाँ पे स्टैक है, सो स्टैक लिखेंगे, डॉट अपेंड इज द मेथड जिसको यूज करके हम एलिमेंट को पुश कर सकते हैं, देन विद इन ब्रैकेट विद इन पैरेंथेसिस यू हैव टू गिव द आइटम। जिस आइटम को आपको इंसर्ट करना है, पुश करना है स्टैक में, वो आइटम को आप ब्रैकेट में देंगे। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर पुश ऑपरेशन। अंडरस्टूड? थर्ड वन, पॉप ऑपरेशन। पॉप आपको पता है, इफ यू वांट टू रिमूव एन एलिमेंट, तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, स्टैक डॉट पॉप, द मेथड इज पॉप। यहां पर देखिए, दिस इज द लिस्ट नेम दैट इज स्टैक डॉट पॉप इज द मेथड, देन जस्ट ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। यहां पर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं करना है। वाई? बिकॉज ऑटोमेटिकली आपको पता है स्टैक में एलिमेंट कहां से रिमूव होता है, टॉप से रिमूव होता है। सो इस तरीके से हम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली द टॉप मोस्ट एलिमेंट विल बी रिमूव्ड। क्लियर? सो दीज आर द ऑपरेशंस एंड इन दिस वे लिस्ट आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट स्टैक इन पाइथन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज स्टैक एप्लीकेशंस, और व्हाट आर द एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ अ स्टैक। स्टैक को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं या स्टैक को हम कैसे यूज करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। Normally stacks are used or applied where LIFO pattern, LIFO scheme is required. जहाँ पर भी आपको LIFO scheme या LIFO pattern चाहिए होता है, वहाँ पर हम stack को apply करते हैं। One of the use of stack is to convert complex arithmetic operation. आपको पता है arithmetic operation क्या होता है, जिसमें combination of operators, operators कौन सा होगा, arithmetic operators हमने देखा था, plus minus into divide, then combination of operators and operands. Operands means जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड से क्या बनता है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनता है। सो वन ऑफ द यूज ऑफ स्टैक इज टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन इनटू अ पॉलिश स्ट्रिंग। दैट मीन्स स्टैक का यूज क्या है, कॉम्प्लेक्स arithmetic operations to convert complex arithmetic operations into Polish string. अब Polish string क्या है, Polish string एक notation को refer करता है, it refers to a notation. There are three kinds of notation. यहाँ पर three kinds notation के three types है.
One is infix, prefix and postfix. These are the three notations. तो पॉलीस्ट्रिंग क्या होता है, ये नोटेशंस को हम बोलते हैं पॉलीस्ट्रिंग. दैट मीन्स स्टैक्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस इनटू पॉलीस्ट्रिंग, जिसमें क्या होता है इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन होता है. ओके, लेट्स सी व्हाट आर दिस नोटेशंस रेफर. ये नोटेशंस क्या होता है दैट वी विल सी नाउ. द फर्स्ट वन इज इनफिक्स. विल सी विथ एग्जाम्पल. सपोज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज a प्लस बी. इस तरीके से हम लिखते हैं a प्लस बी. दिस इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेंट कौन सा होगा, a एंड b आर द ऑपरेंट्स. व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑपरेंट्स, बिकॉज जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया जा रहा है, एडिशन. सो एडिशन किसके ऊपर किया जा रहा है, a और b के ऊपर. सो जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेंट्स. सो इफ द ऑपरेटर कम्स इन बिटवीन द ऑपरेंट्स, जब ऑपरेटर जो सिंबल होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो सिंबल होता है, अगर वो ऑपरेंट के बीच में, ऑपरेंट इनसाइड, इन बिटवीन द ऑपरेंट्स होता है, दैट नोटेशन इज कॉल्ड एज इनफिक्स. इन मतलब इन बिटवीन द ऑपरेंट्स. प्रीफिक्स में क्या होता है, सेम एक्सप्रेशन को हम प्रीफिक्स तरीके से लिख सकते हैं. दैट मीन्स इफ द ऑपरेटर सिंबल यहाँ पर कौन सा है, प्लस. If it comes before the operand, that means इसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को अगर हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं then it will be converted as plus ab. That means if the operator symbol comes before the operand then that notation is called as prefix. Clear? Postfix में क्या होता है, post means after. That means if the operator symbol comes after the operand, दैट मीन्स सेम इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं पोस्टफिक्स फॉर्म में ए बी प्लस. तीनों एक्सप्रेशन का मीनिंग सेम है बट यहाँ पर खाली ऑपरेटर्स का पोजीशन डिफरेंट है. यहाँ पर इन बिटवीन द ऑपरेंट्स है तो इसीलिए इनफिक्स कहते हैं. प्रीफिक्स मीन्स बिफोर द ऑपरेंट एंड पोस्टफिक्स मीन्स आफ्टर द ऑपरेंट. तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेंट के बाद, पोस्ट मीन्स आफ्टर. सो दैट नोटेशन इज कॉल्ड एज postfix notation. One more example we will see, a minus c into b. This is an infix expression. Operators symbols are minus and into, comes in between the operands. If it has to be converted into prefix, prefix form इसका क्या होगा, ac minus, then it should be multiplied with b. So this is the prefix form. And in postfix you have to write ए सी माइनस, ए और सी को माइनस करना है, देन इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ बी. बी के बाद यानी यहाँ पर देखिए सारे ऑपरेटर जो सिंबल है वो आफ्टर दी ऑपरेंट्स है. सो दीज आर द थ्री नोटेशन, इसको कहते हैं पॉलिश स्ट्रिंग. सो स्टैक का यूज क्या है, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन इनटू दिस नोटेशंस, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स. नाउ स्टूडेंट्स, if a question is given to convert infix to postfix or to evaluate any postfix expression, suppose अगर आपसे पूछा जाता है कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना या फिर कोई एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यू हैव टू इवेल्युएट दैट एक्सप्रेशन. दैट मीन्स if you want to convert infix to postfix or evaluate any postfix expression, you have to follow evaluation order. आपको evaluation order को follow करना है. What is the order? Evaluation order means priority आपको किसे देना है, precedence. सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना है ब्रैकेट्स को. ब्रैकेट मीन्स पैरेंथेसिस. The first preference is given to brackets or parentheses. Second is exponentiation. Exponentiation हमने देखा था, exponentiation means फॉर एग्जाम्पल 5 raised to the power 3, 5 क्यूब निकालना है. यहाँ पर नॉर्मली या तो कैरेट सिंबल यूज करते हैं या फिर हम डबल स्टार सिंबल, दैट इज डबल एस्ट्रिक. एक्सपोनेंशिएशन की नॉर्मली डबल एस्ट्रिक को यूज कर सकते हैं. देन थर्ड प्रेसिडेंस इज, थर्ड प्रायोरिटी इज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन.
दैट मीन्स सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट्स को दिया जाता है, देन एक्सपोनेंशिएशन, देन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, लास्ट वन इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन. स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस इवैल्यूएशन ऑर्डर. इवैल्यूएशन ऑर्डर मीन्स ये आपका प्रायोरिटी है, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. जब कोई भी एक्सप्रेशन दिया होता है जिसमें इनफिक्स से आपको पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना है या फिर इवैल्यूएट करना है, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? ब्रैकेट्स को, पैरेंथेसिस को. देन उसके बाद आता है एक्सपोनेंशिएशन, जिसमें हम डबल एस्ट्रिक सिंबल, फॉर एग्जांपल 5 क्यूब निकालना है तो हम लिखेंगे 5 डबल एस्ट्रिक सिंबल 3, ये एक्सपोनेंशिएशन है, दैट मीन्स 5 रेज टू द पावर 3. देन थर्ड प्रायोरिटी इज गिवन टू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों का प्रायोरिटी सेम है, इक्वल है. देन इफ एनी एक्सप्रेशन इज गिवन वेयर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बोथ आर यूज्ड, जहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी है डिवीजन भी है, तब आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? देन यू हैव टू फॉलो लेफ्ट टू राइट पैटर्न. दैट मीन्स जब कोई एक्सप्रेशन दिया होता है जिसमें सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स होंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों प्रेजेंट है, तो आप किसे पहले इवैल्यूएट करेंगे? देन यू हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो ऑपरेटर लेफ्ट में सबसे पहले आता है वो ऑपरेटर को पहले इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद राइट की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट ऑपरेटर उसके बाद इवैल्यूएट होगा. सेम विथ द लास्ट वन, फोर्थ वन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. दैट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी प्रायोरिटी सेम है, दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो लेफ्ट टू राइट. सो दीज आर द priority precedence while doing infix to postfix conversion. Students, let's see a question. Evaluate the expression 5, 6, 2 plus asterisk symbol, that is into 12, 4 divided by, that is slash, minus in tabular form showing stack status after every step. दिस इज अ क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए आपको एक पोस्ट फिक्स, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट इज ए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इसे आपको इवैल्यूएट करना है किस फॉर्मेट में? टैबुलर फॉर्म में. देन शोइंग स्टैक स्टेटस आफ्टर एवरी स्टेप, आपको स्टैक का स्टेटस दिखाना है, शो करना है हर एक स्टेप के बाद. क्लियर? सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. These are the columns you have to draw. The first one is step, then input, then action, then stack status. Okay, the first step, step 1. What is the input? 5. First input is 5. इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपको ऑपरेंड मिलता है 5, 6, 2, ये सब क्या है? ऑपरेंड है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. सो ऑपरेंड जब भी आपको मिलता है, व्हाट एक्शन यू हैव टू डू? यू हैव टू परफॉर्म push operation. That means whenever you are getting an operand, you have to perform push operation. push क्या करना है आपको? जो आपने इनपुट लिया था वो आप पैरेंथेसिस में लिख दीजिए ताकि आपको क्लियर होगा आप क्या एलिमेंट को पुश कर रहे हैं? 5. देन इट विल गो टू द स्टैक. इसके पहले स्टैक एम्प्टी था, अब आपने एक एलिमेंट को पुश किया है 5. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट एलिमेंट इज 6. सो नेक्स्ट इनपुट इज 6. Again this is an operand, so what you have to do? You have to perform push operation. तो push लिखेंगे आप, then 6 लिखें. then already stack में क्या है? 5 already present था. आपको पता है जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करते हैं वो टॉप ऑफ द स्टैक में जाता है, यानी इसके टॉप में हम मान के चलते हैं ये बॉटम में है, इसके टॉप में, यानी इसके बाद इंसर्ट होगा 6. यही आपको शो करना है. शोइंग स्टैक स्टेटस आफ्टर एवरी स्टेप. स्टैक का स्टेटस क्या है हर एक स्टेप के बाद वो आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाना है. देन थर्ड वन, थर्ड इनपुट इज 2. अगेन इट इज एन ऑपरेंड. सो आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना होगा? यू हैव टू परफॉर्म पुश. पुश करेंगे, देन इट विल गो टू स्टैक. सो अब स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट है? 5, 6 एंड 2. क्लियर? फोर्थ स्टेप, फोर्थ में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका? प्लस. अब देखिए प्लस आपका ऑपरेटर है, इट इज नॉट एन ऑपरेंड. सो जब भी आपको कोई ऑपरेटर सिंबल मिलता है देन दैट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन. सो जब भी ऑपरेटर सिंबल मिलेगा आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है. कितने एलिमेंट को आप पॉप करेंगे?
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने एलिमेंट को आपको पॉप करना है, क्योंकि आपको पता है जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप करेंगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, सभी के लिए आपको मिनिमम 2 ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड, 2 ऑपरेंड चाहिए जिसके ऊपर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. दैट मीन्स यू हैव टू पॉप 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक. क्लियर? सो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा रिमूव होगा? यहाँ पर देखिए स्टैक में टोटल 3 एलिमेंट्स आते हैं, 5, 6 एंड 2. तो आपको पता है स्टैक में जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है? 2. सो दैट विल बी रिमूव फॉर. तो सबसे पहले जब हम पॉप करेंगे तो पॉप किसे करना है? सबसे पहला एलिमेंट, टॉप मोस्ट एलिमेंट, दैट इज 2. अब आपका स्टैक में कौन सा एलिमेंट बचा है? 5, 6. 2 एलिमेंट्स आर रिमेनिंग. देन अगेन यू हैव टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन, जिसमें आपको नेक्स्ट एलिमेंट को पॉप करना है. अब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? 6 है. तो अब आप किसे पॉप करेंगे? 6 को करेंगे. अब स्टैक में आपका केवल एक ही एलिमेंट बचा है, दैट इज 5. ओके, सो यू हैव पॉप्ड 2 एलिमेंट्स. अब आप हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? प्लस. प्लस मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट. इधर यू कैन राइट कैलकुलेट और इवैल्यूएट. आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए कैलकुलेट या फिर आप लिखिए इवैल्यूएट. देन यहाँ पर आपको क्या इवैल्यूएट करना है? जो भी सेकेंड एलिमेंट जो आप यहाँ पर आप लिख रहे हैं वो आपको पहले लिखना है. इवैल्यूएट 6 + 2. 2 + 6 नहीं लिखेंगे, 6 + 2. जो सेकेंड एलिमेंट जो पॉप हुआ है उसको पहले लिखना है. देन जो भी ऑपरेटर है वो लिखेंगे. देन फर्स्ट एलिमेंट जो पॉप हुआ था. 6 + 2 क्या होगा? आंसर इट विल बी 8. यू आर गेटिंग द रिजल्ट. सो ये जो आपको रिजल्ट मिल रहा है ये आपको पुश करना है स्टैक में. सो आप पुश करेंगे रिजल्ट को, पुश 8. सो स्टैक में आपका ऑलरेडी कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था? 5. उसके बाद कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हो गया है? 8, जो कि आपने जस्ट इवैल्यूएट किया है, कैलकुलेट किया है. क्लियर? यहाँ तक समझ में आपको? देन इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप, ये कंप्लीट जो है ये आपका 4th स्टेप है, क्योंकि ये प्लस ऑपरेशन के अंदर ये होता है, 2 एलिमेंट को पॉप किया जा रहा है. देन यू आर इवैल्यूएटिंग, you are calculating, doing the operation, then you are pushing, inserting back the result. जो भी result मिलता है वो आपको again stack में push करना है. Then next element, 5th one, after plus it is asterisk. Asterisk means you have to perform multiplication. Again आपको पता है जब भी operator मिलेगा you have to pop 2 elements. तो आप कौन से एलिमेंट को सबसे पहले पॉप करेंगे? पॉप 8, देन पॉप 5. यहाँ पर जब आप 8 को पॉप करेंगे यहाँ पर 5 रिमेनिंग होगा, 5 लेफ्ट होगा. लेकिन जब आपने 5 को भी पॉप कर लिया है तो यहाँ पर अब स्टैक आपका एम्प्टी हो गया है. आपने दोनों एलिमेंट को पॉप कर लिया है. सो नाउ द स्टैक इज एम्प्टी. नाउ व्हाट यू हैव टू परफॉर्म? यू हैव टू इवैल्यूएट 5 × 8. What is 5 × 8? 40. Now you have to push the result, that is 40. So 40 will come in the stack. Okay. Next is 6th step. 6th में आपका next कौन सा एलिमेंट है? That is 12. 12 is an operand. So आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना होगा? पुश 12. तो यहाँ पर ऑलरेडी 40 है, उसके बाद एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया है 12. नेक्स्ट एलिमेंट इज 4. अगेन इट इज एन ऑपरेंड, सो यू हैव टू परफॉर्म पुश ऑपरेशन. पुश लिखेंगे 4, 40, 12, 4. स्टैक में वो एलिमेंट इंसर्ट हो गया है. यू कैन सी. नेक्स्ट वन, 8th स्टेप. अगेन यू आर गेटिंग एन ऑपरेटर सिंबल, दैट इज डिवाइडेड बाई स्लैश. तो यहाँ पर आपको डिवीजन परफॉर्म करना है. दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू पॉप 2 एलिमेंट्स. सबसे पहला एलिमेंट कौन सा पॉप होगा? 4. सो रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी 40 एंड 12. देन अगेन यू हैव टू पॉप वन मोर एलिमेंट, दैट इज 12. सो ओनली वन एलिमेंट विल बी लेफ्ट, दैट इज 40. अब हमें इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट 12 डिवाइडेड बाई 4. 12 डिवाइडेड बाई 4, आपका आंसर क्या मिलेगा? यू विल गेट 3. 4 3s are 12. सो नाउ यू हैव टू पुश द रिजल्ट, दैट इज 3. पुश करना है. सो स्टैक में आपको मिलेगा 40, 3. क्लियर? लास्ट स्टेप. नाउ द लास्ट एलिमेंट इज, अगेन इट इज एन ऑपरेटर, दैट इज माइनस. दैट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन. अगेन यू हैव टू
फर्स्ट पॉप 2 एलिमेंट, सबसे पहले हम किसे पॉप करेंगे 3, देन अगेन यू विल पॉप 40, ओके 3 और 40 आपने पॉप किया, देन यू हैव टू इवैल्यूएट करेंगे 40 माइनस 3 दैट इज 37. नाउ यू हैव टू पुश 37. यहाँ मैंने सेम लाइन में लिख दिया है, आप उसे नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं पुश 37. नाउ द स्टैक विल हैव ओनली वन एलिमेंट दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट इज 37. क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन इवैल्यूएट एनी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको कॉलम्स याद रखना होगा, स्टेप, इनपुट, एक्शन, स्टैक स्टेटस. जब भी आपको पता है इस तरह के जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, जब भी आपको ऑपरेंड मिलता है, ऑपरेंड मीन्स एनी वैल्यू, देन आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना होता है, पुश करना होता है. जब भी आपको ऑपरेटर सिंबल मिलता है देन यू हैव टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन. तो पॉप में आपको पता है क्यों हम 2 एलिमेंट को पॉप करते हैं, बिकॉज इट इज एन अर्थमेटिक ऑपरेशन. मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितना है, 2 ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन. सो हमें 2 एलिमेंट को पॉप करना है. बस हमें ध्यान देना है जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो जो एलिमेंट लास्ट में पॉप हुआ है वो एलिमेंट को पहले लिखा जाता है, देन उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट को लिखते हैं. स्टूडेंट्स, प्लस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा इफ़ यू आर इंटरचेंजिंग. अगर आप सेकेंड 8 into 5 लिखेंगे या 2 + 6 लिखेंगे, आंसर विल बी सेम, नो प्रॉब्लम. बट इस तरह के केसेस में 12 और 4 जिसमें आप डिवीजन सिंबल यूज करते हैं माइनस, यहाँ पर अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं, सपोज 12 डिवाइडेड बाई 4, आपको आंसर क्या मिला 3. अगर आप लिख देते हैं गलती से पहला एलिमेंट को लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाई 12, देन आंसर विल बी डिफरेंट. उसी तरीके से यहाँ पर देखिए जब आपने माइनस किया था 40 सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, 40 माइनस 3 किया था, हमें आंसर मिला 37. अगर आप गलती से लिख देते हैं फर्स्ट एलिमेंट 3 माइनस 40, तो आपको आंसर क्या मिलता -37. दैट मीन्स आंसर डिफर हो जाता है. सो इसीलिए आपको ध्यान देना है जब भी ऑपरेटर सिंबल देखते हैं आपको इवैल्यूएट करते वक्त सेकेंड एलिमेंट उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को लिखना होता है. सो इन दिस वे you can evaluate any expression by showing stack status. So last answer आपको एक numeric value मिलता है. So this is the answer. So this is one of the application of a stack. इस तरीके से stack को use किया जाता है. Students, in the next class we'll see one more question where evaluation of postfix expression will be done. That will be true false pattern and alphabets A and B operand pattern will be solved. Till then, keep practicing.